Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about one very crucial aspect with respect to log. ये log का हमारा तीसरा session है. I'm sure all of you have gone through our earlier two videos. This is our third session and overall this is 12th lecture. In this log session, we are going to discuss something very important which is, you can say, log का graph कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट लॉगरिदम इनइक्वालिटीज. बड़ा क्रूशियल चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, ज़रा भी भारी भरकम बात नहीं है. बट देन एज यूजुअल अगर जो बंदा अलर्ट होगा, जो बंदा ध्यान रखेगा, हर छोटी छोटी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, उसको ये पर्टिकुलर एरिया में ज़रा भी दिक्कत नहीं पड़ेगी. ठीक है, चलिए ग्रेट. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is, you can say, logarithm inequality, and we will learn this inequality with the help of graph. So how does a graph of log look like? ठीक है, so we have a graph for a log y, मतलब graph of y is equal to log of x to the base a. So in other words, ठीक है, they are asking us to do this. Okay, वो चाहते हैं कि हम इसका ग्राफ बनाएं. Let us say this is x axis, this is y axis. ठीक है, and it is saying y is equal to log of x to the base a. Note किया जाए, very important point we are taking is a is greater than 1. That means base is greater than 1. Remember, in the making of the graph of, you can say, log, the base is very crucial. We all know in this, you can say, format, that is log of x to the base a, we know x is greater than 0. We also know a is greater than 0, and we also know a cannot be 1. ठीक है ना? So that's how the idea we already know. Now, how do I, you can say, get this? So for example, let's say I have log x to the base 2. ठीक है, just to make it little comfortable, I'm doing this, है ना, ताकि आपको और मुझे थोड़ा comfortable हो जाए. So when I put, you can say, log of 2 to the base 2, ऐसा करूंगा मैं. ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. Yes or no? ठीक है, so let me put it. This is x, this is y. ठीक है, if I put x is equal to, you can say, 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 लगाता हूं, ठीक है, so log 1 to the base 2 is 0. So that means ये हो जाएगा आपका 1, 0 का ग्राफ. क्या बनेगा? 1, 0 का पॉइंट ये है. ठीक है, so this is 0. Now if I put 2, ठीक है, if I put 2, the value will be 1. ठीक है, and then as I progress further, ठीक है, I can move towards like this kind of graph. ठीक है, what will happen? 2 value less than 1. So if I put x equals to 1 by 2, so y is equal to log of, you can say, 1 by 2 to the base 2, so that becomes log of 2 की power minus 1 to the base 2. So this is minus 1 log of 2 to the base 2, which is minus 1. Yes, so at 1 by 2, the value is minus 1. And as I progress further, ये value मेरी negative और जाती रहेगी. This is what my graph of log of x to the base a will look like. ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ बनेगा लॉग का, जहां पे मेरा a इज ग्रेटर देन 1 है. इसको नोट करना, ये बड़ा मजेदार सा ग्राफ है. आपको ग्राफ से अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, देन योर विजुअलाइजेशन विल इंप्रूव एंड योर एबिलिटी टू सॉल्व आंसर्स, योर एबिलिटी टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड गेट द आंसर विल आल्सो इंप्रूव. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a. आप देख सकते हैं, दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ. कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, आगे बढ़ रहा है. एज आई प्रोग्रेस ऑन एक्स द वैल्यू इंक्रीजेस. ठीक है, चलिए बढ़िया. लेट मी ड्रॉ अनदर, you can say, graph. The graph tells me, ठीक है, the graph tells me that this is x axis, this is y axis, and it says y is equal to log of x to the base a. This is log of x to the base a, and a is between 0 and 1. So a की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है. ठीक है, so just like this, है ना, y is equal to log of x to the base 1 by 2. बराबर है. so that means अगर मैं लिखता हूं वापस यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं y is equal to log of
एक्स एक्स की वैल्यू मैं 1/2 लेता हूं, what will be the value here? 1. ठीक है ना, this will become 1. okay, log 1/2 to the base 1/2 is 1. ठीक है, which means let us say this is 1 and we are at 1/2, the value here is positive. ठीक है, if I take x की value as 1/4, so y is equal to log of 1/4 to the base 1/2. this is nothing but log of 1/2 का square. 1/4 is nothing but 1/2 का square ना, so this is 1/2, so this becomes 2 of log of 1/2 to the base 1/2, which is nothing but 2. ठीक है ना, तो वो आपको क्या देगा? 2 देगा. so at 1/4 the value is here. ठीक है, but let's say if I take ये 1 की जगह पे if I take 2, है ना, let's do this. y is equal to log of 2 to the base 1/2. in other words, this will be written as log of 1/2 to the base -1, and ये 1/2 हो गया. yes or no? 1/2 की power -1 is nothing but reciprocal of it. ठीक है, so which is nothing but minus of log of or -1 of log of 1/2 to the base 1/2. answer is -1. ठीक है, so at 2 the value is -1. ठीक है, so in a way I'm moving my graph like this. This is how my graph will look like for the log. Look at this, both the graphs. One is increasing graph, other is decreasing graph. ठीक है, decreasing है. What do you mean by decreasing? As I progress on x, it is decreasing. ठीक है, as I progress on x, it is decreasing. ठीक है, चलो बढ़िया. तो ये मेरा मजेदार सा ग्राफ क्रिएट हो रहा है. नाउ दैट ऑल डिपेंड्स ऑन मेरा बेस क्या है. ठीक है, बेस की वैल्यू क्या है. अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लाइफ मस्त है. अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो लाइफ इज डिक्रीजिंग. सिंपल है. हाँ, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, तो ये रहा हमारे पास लॉग का ग्राफ. आई हैव जस्ट रिटन इट जस्ट फॉर यू. ठीक है, वापस देखिए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, एंड इफ बेस a is greater than 1. ठीक है, so graph is increasing, and if my base is between 0 and 1, नोट किया जाए, it is always between 0 and 1. ये लॉग की अंदर x की वैल्यू है ग्रेटर देन, यू कैन से 0, a की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी 1, ऐसा दिया जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. रिमेंबर, दिस इज अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन y एंड x. ठीक है, सो इफ योर a, नोट किया जाए, इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 1, योर ग्राफ इज इंक्रीजिंग. नोट किया जाए. ठीक है, नोट किया जाए, ध्यान से समझना इसका क्या मतलब हुआ. इफ योर नंबर एंड बेस बोथ आर ईदर लेस देन 1, या दोनों लेस देन 1 है. ठीक है, दोनों लेस देन 1 है या दोनों ग्रेटर देन 1 है, लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. आप देखिए, है ना, या 1 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, या 1 के नीचे है, ये सनो, तो दोनों पॉजिटिव है. दिख रहा है आपको. इफ योर नंबर, नोट किया जाए, वापस समझिए, बराबर है, वापस समझिए. योर बेस, दैट इज बेस ए इज लेट्स से लेस देन 1, सो वी आर हियर. बेस ए is less than 1, and your number which is your x is also less than 1. We are here on this side. ठीक है, then the value is positive. सही है. अगर you can say the number is greater than 1 and base is also greater than 1, so base is greater than 1 on this graph and the number is more than 1, the value is positive. Clear है, समझ में आ रहा है दोस्तों, बढ़िया. Similarly, a number and base are on the opposite side of 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी आर ऑन दिस केस वेर योर बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ग्रेटर देन 1, बट योर नंबर दैट इज x इज लेस देन 1. सो दैट मीन्स नंबर वी आर हियर एंड x इज लेस देन 1, द वैल्यू विल बी नेगेटिव. लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है, बिल्कुल. सिमिलरली, अगर आपका बेस 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, और उस समय पे आपका जो नंबर है वो 1 के राइट हैंड साइड में, मतलब बड़ा है, ठीक है, इस साइड पे, तो वैल्यू नेगेटिव है.
दिख रहा है सबको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन को दिमाग में डाल दीजिए। बड़े काम का ऑब्जर्वेशन है, आपका काम बहुत आसानी से ये कर देगा अगर आपने इस चीज़ को दिमाग में डाल दिया तो। ठीक है, इज दैट कंफर्टेबल? चलो बढ़िया। अब हम इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर, है ना, हम लॉगरिदम इनइक्वालिटीज को समझेंगे। इस ग्राफ के बेसिस के ऊपर हम लॉगरिदम इनइक्वालिटीज को समझेंगे। ठीक है, लॉगरिदम इनइक्वालिटी दो केसेस में देखी जाती है। वन, व्हेन योर बेस इज कांस्टेंट, एंड सेकंड, योर बेस इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हेन योर बेस इज कांस्टेंट, व्हाट विल यू डू is the very crucial part. So when your base is constant, we have two cases. One, either base is greater than 1 or base is 0 और 1 के बीच में है. That's how the game will work. ठीक है, सो लॉगरिदम इनइक्वालिटीज में हमारे पास जब बेस कांस्टेंट होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेस है क्या बेस 1 से बड़ा है? ग्रेट, देन वी आर वर्किंग ऑन दिस ग्राफ. व्हेन वी सी नो बेस इज नॉट ग्रेटर देन 1, इट इज बिटवीन 0 and 1, देन वी आर हियर. क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर फ्रंट. ठीक है, जब हमें बोला गया कि इफ ए इज ग्रेटर देन 1, ओके, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, उसके बारे में जब बात होती है, नोट किया जाए, है ना, नोट किया जाए. वी आर वर्किंग ऑन, यू कैन से, व्हेन बेस इज कांस्टेंट एंड बेस की वैल्यू इज मोर देन 1. ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास एक वैल्यू है x1, नोट करना, मैंने बताया था ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, मैंने आपको समझाया था ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है. सो व्हेन x1 आपका दिया गया है, ठीक है, एंड देन देयर इज x2 इज गिवन. ठीक है, एंड x2 इज ग्रेटर देन x1, देन उसकी वैल्यू log की, ठीक है, क्या मिलेगी? log ऑफ x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ x1 टू द बेस a. आप देख सकते हैं ना, ये वैल्यू के सामने ये वैल्यू बड़ी है. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ x2 टू द बेस a, दिस इज द वैल्यू फॉर log ऑफ x1 टू द बेस a. ठीक है ना, ये उनकी वैल्यूज है, बराबर है. तो व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, आई कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस. इज दैट कंफर्टेबल? समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, चलो ग्रेट. सो व्हेन योर a इज ग्रेटर देन 1, ऐसा होता है. अब आप देखिए, ये आपका बेस कांस्टेंट है और वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब आपका ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है. आपका ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है. इस डिक्रीजिंग ग्राफ के अंदर अगर मैं लेता हूं, लेट अस से दिस इज x1 एंड दिस इज x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, आई नो माई x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना. आप समझ सकते हैं ना, एक्स एक्सिस के ऊपर x2 x1 से बड़ा है. ठीक है, उस सेंस में आप यहां पे आएंगे, ठीक है, तो आपका ये नेगेटिव वैल्यू हो रहा है. सही है. सो दिस इज log ऑफ x1 एंड दिस इज log ऑफ x2. हियर योर log ऑफ x2 इज लेस देन log ऑफ x1. नोट करना, यहां पे लेस हो रहा है. ठीक है ना, यहां पे लेस हो जाएगा, यहां पे साइन बदल जाएगी, yes or no, और यहाँ पे साइन नहीं बदलेगी. Is that very comfortable with everyone? When your base is constant and when your base is greater than 1, ठीक है, when numbers are increasing, then the log value will also increase. In other words, log value is increasing, ठीक है, and therefore if the base is constant, numbers will also increase. Clear है? चलो बढ़िया. ठीक है ना, बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये बिल्कुल नोट करने जैसी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल इगेन से कभी पंगा मत करना. ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा. आई विल रिपीट फॉर यू वन मोर टाइम. When your base is constant, नोट करना, this is working only and only for the base constant. Logarithm inequalities कैसे काम करती है? If your base is greater than 1, आप log हटा दो या log लगा दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम. एज इन इधर आपने देखा ना, x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, तो आप उसको log लगाओ तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, या log से आप यहां पे कंक्लूड करना चाहो, log हटाओ तो भी आपको चलेगा, दैट इज फाइन. यस और नो? सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम. Very important concept. Very important concept. That's a case number 1.
ठीक है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपके सामने केस नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है। इज दैट कंफर्टेबल? सो इसको मैं केस नंबर 1A ऐसा बोल दूं तो बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस नंबर, यू कैन से 1B, ओके, ठीक है। सो दिस इज केस नंबर 1A एंड दिस इज केस नंबर 1B। और B का ग्राफ कैसे दिख रहा है यहाँ पे? इफ बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, इफ बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, लॉग हटाओ या लॉग लगाओ, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया, क्लियर है भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना। ये रहा था, हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था, ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया है, ताकि आपको कभी भी इस बात को समझने में दिक्कत ना पड़े, ठीक है। चलिए बच्चों, बड़ा मजेदार सा काम हो गया है। अब हम इस लॉजिक के ऊपर इगेन से हम अलग शब्दों में इसको वापस लिख लेते हैं कि अगर ऐसा किसी ने लिख दिया कि log of x to the base a is greater than log of y to the base a, and आपका कांस्टेंट बेस है, एंड वी ऑलरेडी नो a is greater than 1, then we know that x is greater than y। सही है, ऐसा लिख सकते हैं हम। सिमिलरली अगर आपका बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, देन उस समय पे x इज लेस देन y। यहां पे आपका साइन रिवर्स हो गया है और यहां पे आपकी साइन चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है ना, साइन डज नॉट चेंज। क्लियर है? चलो बढ़िया, सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड वी आर डूइंग सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। सो आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन देके रखे हैं, हम दोनों क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से हमें समझ में आता है कि नहीं आता है। ये इनइक्वालिटी का सवाल है और यहाँ पे बेस आपका 2 कांस्टेंट देके रखा हुआ है। सो व्हाट विल आई डू नाउ व्हेन आई माय बेस इज कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट कैन आई डू? आई कैन डू दिस, x minus 3 is greater than 4, simple। so that means x is greater than 7। x की वैल्यू यू कैन से क्या होनी चाहिए? 7 से बड़ी होनी चाहिए। yes or no? रिमेंबर यहां पे x minus 3 की वैल्यू ग्रेटर देन x minus 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी। सो दिस इज x इज ग्रेटर देन 3, उसी में ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। ये लॉग वहीं पे डिफाइंड होगा, वो अलग बात है, पर हमारे लिए रेंज क्या बन गई? x इज ग्रेटर देन 7, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, हाँ। सो देयरफॉर दिस इज फाइन। चलो ये अब यहाँ पे देखते हैं। अब आपका बेस है बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपका बेस बिटवीन 0 एंड 1 है तो मैं सीधा इसको लिखूंगा x माइनस 3, और यहाँ पे ग्रेटर था तो मैं साइन चेंज कर दूंगा, साइन रिवर्स कर दूंगा, एंड दिस बिकम्स दिस। सो देयरफॉर दिस इज x इज लेस देन 7। x क्या हो जाएगा? 7 से छोटा। बट कंडीशन ये है कि भैया आपका x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ग्रेटर देन 3। तो अब आपका इसका रेंज बनेगा, द रेंज हियर है ना, द वैल्यू विल बी बिटवीन 3 to 7, नॉट रेंज बट द डोमेन। x की वैल्यू विल बी बिटवीन 3 and 7, ठीक है ना? समझ में आया ना दोस्तों? यहाँ पे क्यों ग्रेटर देन 7 लिखा था और यहाँ पे क्यों 3 और 7 के बीच में आ रहा है, ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये ग्रेटर देन 7 लिखा था क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ा होना चाहिए था, वो कंडीशन थी, पर 7 से बड़ा ही कंडीशन प्रूव हो रही है। सो उसके अंदर ऑलरेडी 3 वाला पार्ट आ चुका है, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन 7 बोला था, सो आई कैन गो अप टू माइनस इन्फिनिटी, बट लॉग नेगेटिव नंबरों के लिए वैलिड है नहीं, कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, इसलिए इट इज बिटवीन 3 and 7। क्लियर है भैया सबको? पक्का? चलो बढ़िया। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड वन मोर एस्पेक्ट। एक बड़ा मजेदार सा एस्पेक्ट यहां से समझने की कोशिश करते हैं। मानो लॉग को कोई नंबर के साथ कंपेयर किया इनइक्वालिटीज में, जैसे हमने देखा लॉग लॉग दिया है तो वी आर जस्ट बेस सेम है तो लॉग हटा देते हैं, और इनइक्वालिटीज को अगर बेस 1 से बड़ा है तो हम जो इनइक्वालिटी है उसी को मेंटेन करते हैं। ये सर नो? अच्छा, अगर आपका जो बेस है वो कांस्टेंट मतलब सॉरी बिटवीन 0 and 1 है तो आप क्या करते हो? साइन चेंज कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे?
वही देख लेते वापस। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो साइन डजंट चेंज, विच मीन्स आपकी वैल्यू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b की पावर c। ठीक है ना, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b टू दी पावर c। ठीक है, वैसा होगा। और अगर आपका बेस बिटवीन 0 एंड 1 है, अगर आपका बेस बिटवीन 0 एंड 1 है, तो आपकी वैल्यू a इज लेस देन और इक्वल टू b टू दी पावर 7 हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं ना, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं अगर बोलूं log ऑफ 8 to the base 2, I already know the value of this is 3। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको ग्रेटर देन, मतलब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 3 होगी, सो आई कैन टेक 2, इसकी वैल्यू, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 2, सो यू अंडरस्टैंड दैट 2 की पावर 2 is less than 8। in other words 8 is greater than 2 की पावर 2 जो यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है ना, उसी लॉजिक से ये दूसरा भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट कर देना और दिमाग में ड्रिल कर देना कि हम उसको कैसे आंसर देंगे। क्लियर है भैया, चलो बढ़िया। अब चलते हैं, हमारे सामने एक बड़ा तगड़ा सा सवाल दिया हुआ है कि इसको हम सॉल्व करेंगे। log ऑफ 2x minus 6 to the base 2x minus 1 is greater than 0। now we know our base is 7 which is greater than 1, so that means हम क्या बोलेंगे इसको, that 2x minus 6 upon 2x minus 1 is greater than 7 की पावर 0। सही है ना, ठीक है। ये वाला फंडा आपने अप्लाई किया, यहां पे देखो आप, ये रहा था। ठीक है, वैल्यू a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b की पावर 7। परफेक्ट है, कोई पंगा नहीं है। नाउ व्हाट इज b की पावर 7? सो दिस इज नथिंग बट 1। Now we know how to solve this. So we know 2x minus 6 upon 2x minus 1 minus 1 is greater than 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भैया। So this becomes 2x minus 6 minus 2x plus 1 upon 2x minus 1 is greater than 0। ठीक है, बराबर है। So 2x आपका चला गया, so you are left with minus 5 upon 2x minus 1 is greater than 0। माइनस हटा देंगे, सो व्हाट डू वी गेट, है ना, और 5 भी हटा देंगे। ठीक है, माइनस 5 दोनों साइड लेके जाएंगे, सो वी विल गेट 1 अपॉन 2x minus 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब आपको पता होगा ये सॉल्व करने का तरीका। इसका हम क्रिटिकल पॉइंट लेंगे विच विल बिकम 1/2। सो 1/2 के राइट हैंड साइड में जाऊंगा मैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव। 1/2 की लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा, सो दिस विल बिकम नेगेटिव। Yes or no? So therefore ये प्रूव होने के लिए आंसर होना चाहिए x belongs to minus infinity से 1/2, ऐसा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, इसका डोमेन, है ना, नॉट जस्ट द काइंड ऑफ यू कैन से सिचुएशन, द x की वैल्यू, है ना, विल बी बिटवीन दिस इज हाउ विल बी वर्किंग ऑन। क्लियर है दोस्तों, कोई पंगा नहीं है, चलो ग्रेट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इसका डोमेन पूछा जाए, सो उसका डोमेन में x की ये वैल्यू तो होगी, बराबर है, पर जो आपका 2x minus 6 है, ठीक है, 2x minus 6 कैन नॉट बी 0, सो देयरफॉर x कैन नॉट बी 3, और इनफैक्ट 2x minus 6 has to be greater than 0, so therefore x has to be greater than 3। ओके, क्लियर है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, है ना, अब यहां पे आपके सामने 3 लॉग देके रखे हैं, 3 लॉग देके रखे हैं। उसमें जो पहला लॉग दिख रहा है आपको, वहां पे आपका बेस का वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। चलो बढ़िया, अब आपका जो बेस का वैल्यू अगर 0 और 1 है, तो आपकी जो साइन है इनइक्वालिटीज की, वो रिवर्स हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, विच मीन्स इसकी वैल्यू विच इज log of to the base 4, साइन आपकी रिवर्स लेस देन 0.2 की पावर 0। क्लियर है, यहां से ये सीधा जंप किया है मैंने, समझ में आया कैसे किया? आप देख सकते हैं, log of something to the base 0.2 is greater than 0, so that something will be always less than 0.2 की पावर 0, and that is what I have written। So what happens? This is
लॉग ऑफ इसकी वैल्यू है 1, सिंपल, 0.2 की पावर कितना हो गया 1। अब आप देख सकते हैं बेस कितना है, बेस 1 के ऊपर है। अगर बेस 1 के ऊपर है तो आपका साइन मतलब आपका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा। सो देयरफॉर लॉग ऑफ x टू द बेस 5 इज लेस देन 4 की पावर 1। वापस आपका 5 है, ठीक है, सो दैट मीन्स x इज लेस देन 5 की पावर 4। सही है, बराबर है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी, वी ऑल नो x इन जनरल हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बीच में यहाँ पे लॉग देके रखा हुआ है, तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला x की वैल्यू लेस देन 5 की पावर 4, ठीक है। व्हाट इज 5 की पावर 4? ओके, 5 की पावर 4 इज 625। So this is x has to be less than 625. So therefore x belongs to 0, 625 is the answer. Clear hai bhaiya? All of you understand this? Great. I'm sure all of you are very intelligent students and therefore you will be in a position to understand this. We bring another question for you. It says log of x minus 1 to the base 0.3 is less than log of x minus 1 to the base 0.09. देखिए दोस्तों, 0.3 और 0.09 है, दोनों कांस्टेंट बेस है। अब जब दो कंपैरिजन देके रखी है ना, ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी क्रूशियल पार्ट। हमें यह समझना पड़ेगा क्या दोनों का बेस सेम है। हाँ, आई कैन एक्चुअली मेक इट हैपन, मैं कर सकता हूं। जैसे log of x minus 1 to the base 0.3 is less than log of x minus 1 to the base 0.3 का स्क्वायर। और आपको ये याद होगा log of b to the base a square will be written as 1/2 log of b to the base a। ऐसा आपके सर ने आपको सिखाया था, याद है कि नहीं भैया? yes or no? so this is 1/p log of b to the base a, ऐसा कर सकते हैं। so that means what I can do is log of x minus 1 0.3 is less than 1/2 log of x minus 1 to the base 0.3। सिंपल है, चलो बढ़िया। ये पॉइंट ये 1/2 है जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम स्क्वायर। सो लॉग ऑफ x minus 1 का होल स्क्वायर टू द बेस 0.3 इज लेस देन लॉग ऑफ x minus 1 टू द बेस 0.3, ठीक है ना। मतलब अगर यू कैन से बेस आपका 0.3 विच इज बिटवीन 0 एंड 1 है, तो आपका जो लॉग है उसमें जो इनइक्वालिटी है उसकी साइन बदल जाएगी, विच मीन्स x minus 1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन x minus 1। दिस इज क्रूशियल, दिस स्टेप इज क्रूशियल। क्यों? क्योंकि आपका बेस है ना बदल रहा है। क्लियर है? चलो ग्रेट, सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस बिकम्स x square minus 2x plus 1 greater than x minus 1. So therefore x square minus 3x plus 2 is greater than 0. So this is x minus 2 and this is x minus 1 is greater than 0. So what happens, है ना, बड़ा सिंपल सा काम, ठीक है। हमें चाहिए ये you can say इस सिनारियो के अंदर कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ, ये बोलता है कि भैया 1 से बड़ा है ना और 2 से बड़ा, ये उन्होंने कहा, ठीक है। 1 से बड़ा और 2 से बड़ा। अब 2 से ऊपर पॉजिटिव, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव, 1 के नीचे पॉजिटिव, ठीक है। बट वी ऑल अंडरस्टैंड आई कैन नॉट टेक x minus 1 एज अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज लॉग नेगेटिव का तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सो देयरफॉर माय एक्सेप्टेबल इंटरवल इज 2 to infinity and therefore answer would be this। क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? ये देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, ठीक है। कंफर्टेबल है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी that many of you are able to understand this। now with this clarity in our mind that base अगर same है, base अगर constant है, so we have two cases possible, ठीक है। हमने देखा था 2 केसेस पॉसिबल है, और एक केस में ए अगर बेस ग्रेटर है तो आप साइन को चेंज नहीं करोगे, और बेस अगर आपका 0 और 1 के बीच में तो आप साइन को चेंज करोगे। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन अ कांस्टेंट बेस। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज विथ वेरिएबल बेस।
variable base. As in, we will not get a case like log of x to the base 2. No, 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 no. It is log of x to the base a. ऐसा देके रखा होगा और a is a variable. A is a variable. Now we already know कि कांस्टेंट के अंदर हमने दो केसेस बनाए थे, तो वेरिएबल में तो पक्का ही दो केस बनाने पड़ेंगे और हमेशा हम मानेंगे दो केसेस और वो दोनों केसेस का यूनियन जो होगा वो अपना आंसर. ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ए वेरिएबल है, बेस आपका वेरिएबल है, तो बेस की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. ये सुनो, बेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस बात पे हम आते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. log of 3 to the base x is greater than 1. तो यहां से मेरे पास दो केस बनेंगे. केस नंबर 1, that is x is greater than 1. केस नंबर 2, x is between 0 and 1. सही है, ये आपका केस बना पहला. अगर ये आपका केस है, ठीक है, तो आपको पता है कि साइन आपको चेंज नहीं करनी है. आपका ये केस है तो आपको साइन चेंज नहीं करनी है. सो देयरफॉर 3 is greater than x की पावर 1. In other words, x is less than 3. अब x is less than 3 बोला है and we already know that इस केस में x has to be greater than 0 and x cannot be equal to 1. सही है, पर हमने तो यही एज्यूम करके चले थे पहले, x greater than 1 है तो इसका रेंज बनेगा, ठीक है, 1 और 3 के बीच में. सो x belongs to 1,3. अब अगला केस है 0 और 1 के बीच में x है. अगर 0 और 1 के बीच में x है तो आपका साइन बदल जाएगा. सो दैट बिकम्स 3 is not greater but it is less than x की पावर 1. So that means 3 is less than x. Now what does this mean? है ना, 3 less than x है, सॉरी x is greater than 3 है, 3 less than x है, x is greater than 3 है. मुझे चाहिए x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 और ये बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है. मतलब यहां तो कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं. सो दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल इस केस में. सो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1,3. दैट इज द आंसर. सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 1,3. क्लियर है? चलो बढ़िया. लेट्स सॉल्व वन मोर. छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. आई एम श्योर यू विल गेन लॉट ऑफ एडवांटेज, यू कैन से, ऑफ वर्किंग ऑन लॉग्स. वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, चलो ग्रेट. देखते हैं वापस, है ना, दो केसेस. केस नंबर 1, x is greater than 1. केस नंबर 2, x, सॉरी, 0 लेस देन x लेस देन 1. सो हमने x ग्रेटर देन 1 माना है तो हमारा ये जो लॉग का वैल्यू है वो हो जाएगा 2x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन x की पावर 2. सही है, ऐसा होगा. सिंपल सा गणित है. सो व्हाट डू आई राइट? आई राइट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इज लेस देन 0. सो विच इज नथिंग बट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज लेस देन 0. सो दिस इज 4 3 12. 12 का कैलकुलेशन होगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज लेस देन 0. सो दिस बिकम्स 2x माइनस 3. यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2x माइनस 1 इज लेस देन 3. बराबर है. सो इफ आई ड्रॉ दिस ऑन ए क्रिटिकल पॉइंट वाला कहानी, सो आई गेट x इक्वल टू 1/2 और दूसरा x इज इक्वल टू 3/2. इफ आई एम ऑन 3/2, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सो मेरा ये जो पहला केस है उस केस से वैल्यू बना x बिलोंग्स टू, यू कैन से 1/2, 3/2. इसके बीच में होना चाहिए, पर मेरा पहला गिनती चालू हो रहा है x इज ग्रेटर देन 1. सो दैट मीन्स इफेक्टिवली इसका आंसर क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू 1, 3/2. ये मेरा पहला आउटकम आया. क्लियर है भैया? चलो बढ़िया. ये मेरा पहला पॉइंट है, इसको मैं नोट करके चलूंगा. इसको मुझे यूनियन इसके साथ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं. ठीक है, चलो बढ़िया. सो 0 लेस देन x इज लेस देन 1 देके रखा हुआ है. सो व्हाट हैपेंस? साइन चेंज हो जाएगी. सो दैट मीन्स 2x माइनस 3/4 इज लेस देन x स्क्वायर. ठीक है, सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4
is greater than 0. So in other words, what do I get is 2x minus 3, 2x minus 1 is greater than 0. So what is the range I am in? I have 1 by 2, I have 3 by 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, अब आप देखिए 3/2 के ऊपर मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरा वैल्यू ही 0 और 1 के बीच में है. सो आई विल हैव 0 और 1/2 के बीच की वैल्यू जो नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी जो पॉजिटिव है वो लूंगा. ये रेंज नेगेटिव वाली तो मेरे काम की ही नहीं है. सो मेरे काम की रेंज ये पूरी थी, पर x की वैल्यू कभी 0 के नीचे हो नहीं सकती. सो देयरफॉर इट इज बिटवीन, सो x बिलोंग्स टू 0, 1/2. ठीक है, ये मेरा हो गया दूसरा पॉइंट. मतलब अब इसका मुझे जो वैल्यू चाहिए है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मैं कहां से ले सकता हूं? x विल बिलोंग टू 0, 1/2 यूनियन 1, 3/2. ये वैल्यू मुझे चाहिए. सही है, पक्का? चलो बढ़िया. सो दिस टेल्स मी द डोमेन ऑफ x इज दिस. डोमेन ऑफ x इज दिस. x की वैल्यू मैं यही ले सकता हूं और कुछ ले नहीं सकता. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. वंस अगेन सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक है ना, वंस अगेन सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस. क्लियर है भैया? चलो ग्रेट. ठीक है, कंफर्टेबल है सबको? आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों. ठीक है, यहां पे आते हैं हम. बराबर है. ठीक है, सो अब हमारे पास क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है? ये रहा पहला सिनारियो. ठीक है, हम मानेंगे केस नंबर 1. केस नंबर 1 क्या मानेंगे? हम मानेंगे जो बेस है, यहां पे बेस क्या है? x+3. नोट करना, बेस आपका x+3 है. सो x+3 इज ग्रेटर देन 1. केस नंबर 2, x+3 इज लेस देन 1 एंड लेस देन 0. ऐसा. ठीक है ना? चलो बढ़िया. सो देयरफॉर दिस टेल्स मी x इज ग्रेटर देन -2. ठीक है ना, ये मेरे को दिया होगा. विच मीन्स आई कैन राइट डाउन x² + x इज लेस देन x+3 की पावर 1. सो देयरफॉर x² + x लेस देन x+3. x चला गया, सो वी आर लेफ्ट विथ x² - 3 इज लेस देन 0. ठीक है, सो अब यहां से मेरे पास होगा x - √3, x + √3 इज लेस देन 0. और ये मैं है ना, कौन सा कहां पे वैल्यू बनेगी मेरी? x बिलोंग्स टू -√3 से +√3 के बीच में. ये पहला केस बना. सही है, चलो बढ़िया. केस नंबर 2 है ना, केस नंबर 2, x+3 आपका वैल्यू किसके बीच में है? द x+3 इज -3 लेस देन x लेस देन -2, इसके बीच में है. सो अगर ऐसा दिया गया है, सो यू कैन डू x² + x. ठीक है, ये लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x+3 की पावर 1. इन अदर वर्ड्स दिस इज x² -3 इज ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर है ना, ठीक है, देयरफॉर x क्या बनेगा? x - √3, x + √3 इज ग्रेटर देन 0. सो आई नो कि मेरे पास -√3 है, ये +√3 है, यहां पे ये पॉजिटिव होगा, इसके बीच में नेगेटिव होगा और यहां पे पॉजिटिव होगा. ठीक है ना, बराबर है. इसका एक्सेप्टेबल रेंज क्या होगा मेरे लिए? अब आप समझिए, मेरा x की वैल्यू -2 और -3 के बीच में होनी चाहिए. ये पक्का है, बराबर है. सो ये पॉजिटिव चलेगा नहीं, ये नेगेटिव चलेगा नहीं, बराबर है. ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए. और मुझे बोला था -√3 के नीचे कोई भी वैल्यू होगी वहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा. -√3 इज -1.7 और ये वैल्यू -2 और -3 के बीच में है. सो देयरफॉर ये वैल्यू बनेगी मेरी x बिलोंग्स टू -2, -3 है ना, उल्टा -3, -2, सॉरी. अगर मैं ये लेता हूं, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 बोला है, नोट करना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 बोला है. ठीक है, सो दैट मीन्स ऑन अ नंबर लाइन ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, -√3 इज समवेयर हियर, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए है ना. और √3
से छोटा होना चाहिए, तो इफेक्टिवली इसकी वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू माइनस, यू कैन से √3 कॉमा √3 परफेक्ट है, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है। क्लियर है भैया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो अब हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेंज के अंदर x की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये 0 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, है ना, मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, मैं कहाँ लिखूँ यहाँ पे, ओके। सो मेरा फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस √3 कॉमा √3 यूनियन -3 कॉमा -2, बराबर है, ये मैं ले लूंगा, सही ना, ग्रेट। एट द सेम टाइम विच नंबर आई कैन नॉट टेक, I cannot take the value of x equal to 0, so -0, that is what I have to remove, simple, क्योंकि अगर 0 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, जो नहीं चलेगा, ठीक है ना, जो नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, अब एक और कंडीशन चाहिए मेरे को यहाँ पे, क्या कंडीशन चाहिए, x² + x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ये भी मुझे चाहिए, सो दैट मीन्स x इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x तो पॉजिटिव चाहिए मेरे को, ठीक है, और साथ में x -1 से बड़ा भी चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिवली इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं तो मेरे लिए सिनेरियो क्या बन जाएगा कि x पॉजिटिव और उस समय पे ये मिक्स, ठीक है। सो वेयर शुड आई राइट, ये तो समझ में आ गया होगा, सो आई एम रबिंग दिस ऑफ, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब मेरे लिए जो पहला केस था, है ना, ये वाला जो केस था √3 माइनस √3 वाले के अंदर मुझे दोनों पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, तो उस सेंस में मेरे लिए x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बोला है, बिल्कुल सही बात है, यस और नो, सो दैट मीन्स आई कैन नॉट टेक -√3, सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 कॉमा, और यहां से मुझे मिल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, सो 0 कॉमा √3, ठीक है। ये केस जो मैंने लिया था मैं उसका आउटकम यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। चलो इसके साथ यूनियन क्या आएगा, अब इसके साथ यूनियन में क्या आएगा, इसके साथ यूनियन में आएगा -3 कॉमा -2 के बीच में, ठीक है, और उस समय पे x इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन -1, बराबर है। अगर वो केस ले रहा हूं तो ये -3 कॉमा -2 इज एक्सेप्टेबल, है ना, दोनों को नेगेटिव ले लिया मैंने, दोनों को नेगेटिव लेता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, yes or no, so this is also acceptable, this is also acceptable, बराबर है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं दोनों को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बराबर है, x इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली ये केस तो पॉसिबल हो नहीं रहा है, और यहां पे मैंने 0 लिया नहीं है, मुझे कोई पंगा नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर इज, क्लियर है, चलो बढ़िया, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन टू दिस, ओके, ठीक है। दोस्तों मैं इसको होमवर्क में आपको दे रहा हूं, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है, कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, द आंसर टू दिस इज 6, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज डू इट, बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता क्या है, ध्यान से समझना। फॉर एनी नंबर n, logarithm can be expressed as log n to the base a is equal to some number. We all know ये नंबर या तो मतलब पूरा का पूरा एक नंबर होगा, नंबर के दो पार्ट होंगे, एक होगा उसका इंटीजर और एक होगा उसका फ्रैक्शन। सो वैल्यू क्या हो सकती है 1.234, the value could be 5, value could be 5.25, value could be -1.01, ऐसा कुछ भी हो सकता है, log की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, सही बात है, चलो बढ़िया है ना, log की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है। तो जब आप उस नंबर को दो भागों में तोड़ोगे कि इसको बोलोगे इंटीजर है और फ्रैक्शन है,
इंटीजर पार्ट है लॉग की वैल्यू का उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और जो फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं मैंटिसा। रिमेंबर, फ्रैक्शन पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। रिमेंबर, आपका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो, है ना, आपको याद रखने वाला एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं कि log of 2 to the base 10 will always be 0.3010। इसके अंदर जो जीरो है ना उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये जीरो है, बराबर है। फ्रैक्शन क्या हो गया, 0.3010, इसको बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोल दिया इसको, मैंटिसा। क्लियर है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, क्लियर, पक्का, दिमाग में बैठा। किसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, कोई भी लॉग की वैल्यू को अगर आप नंबर में लिखोगे तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर और फ्रैक्शन में, तो इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे और फ्रैक्शन को मैंटिसा बोलेंगे। रिमेंबर, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर कैन बी जीरो, इंटीजर कैन बी नेगेटिव, एंड देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक can be positive, can be zero, or can be negative. But mantissa will always be between 0 and 1. It cannot be negative. Mantissa cannot be negative. ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को, है ना, समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। ठीक है, mantissa can never be negative. For example, let's say if I take log of 10 to the base 10 की वैल्यू क्या है, 1, and I know log of 100 to the base 10 की वैल्यू क्या है, 2. So which means if I do log of 11 to the base 10, log of 12 to the base 10, ठीक है, log of you can say 13 to the base 10, और ऐसे करते 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 अगर मैं जाऊंगा log of 99 to the base 10, इन सब की वैल्यू किसके बीच में होगी, इन सब की वैल्यू विल बी बिटवीन 1 और 2 के बीच में होगी। Yes or no? क्योंकि इसके नीचे एक वैल्यू है विच इज log 10 टू द बेस 10, उसकी वैल्यू क्या है, 1। इसके ऊपर एक वैल्यू है log 100 टू द बेस 10, उसकी वैल्यू क्या है, 2। सो ये पूरी वैल्यू क्या है, 1 और 2 के बीच में, विच मीन्स log 10 टू द बेस 10 और log 100 टू द बेस 10 के बीच में जितने भी नंबर है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, विल बी ऑलवेज 1। Yes or no? Similarly, log of 1000 to the base 10 is equal to 3, which means log of 100 से लेकर to the base 10 to log of 999 to the base 10, इसका characteristic will always be 2। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। In other words, let me write it for you. In other words, if characteristic of log of n to the base a is n, then the number of digits of n will be n plus 1। ठीक है ना, नोट करो क्या लिखा है यहां पे। जब आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो चालू कहां से हो रहा है, 10 से, 10 से कहां तक जा रहा है, 99। सो सब 2 डिजिट के नंबर हो गए, ये सनो। तो log n विच इज n इज अ 2 डिजिट नंबर। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 है जो 100 और 1000 के बीच में है, ये सर नो, ठीक है, तो ही तो होगा ना, विच मीन्स 100 से लेकर 999, मतलब ऑल 3 डिजिट नंबर। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3। इज दिस कंफर्टेबल, ये आप नोट करेंगे पक्का दोस्तों। आपके लिए रट्टा मारने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं, log of 2 to the base 10 is 0.3010, इसको आप बिल्कुल नोट करना, कभी कभार एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली log of 3 to the base 10 is nothing but 0.4711, not 11, 4771, ठीक है, ये नोट करना। देखिए ना, सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। 2 डिजिट होता तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता, 1। सही ना, चलो बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बड़ा मजेदार है। तो यहां से सवाल आता है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 की पावर 10 या 2 की पावर 100। लेट्स ट्राई 2 की पावर 10 फर्स्ट, है ना, बड़ा सिंपल सा गणित है, 2 की पावर 10। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। 2 की पावर 10 का कैलकुलेशन मैं यहां पे कर रहा हूं आपके लिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 10। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक लॉग 2 की पावर 10, ठीक है, 2 बेस 10। नोट करना इसके अंदर बेस 10 ही लेना पड़ता है। सो दिस बिकम्स 10 टाइम्स log of 2 to the base 10. So this is nothing but 10 times log 2 to the base 10 is 0.3010. Yes or no? So this is written as 3.010. log के वैल्यू में आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे n+1, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 4। इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे 4। वी ऑल नो दिस, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 एंड 4 डिजिट, परफेक्ट है। चलो ट्राई करते हैं, यहां पे वापस लेते हैं, यहां पे log ऑफ 2 की पावर 100 टू द बेस 10 will be written as 100 into log of 2 to the base 10, which is nothing but 100 into 0.3010. So this is nothing but 30.10. So आपका कैरेक्टरिस्टिक इस log का 30 है, so number of digit will be 30 plus 1, which is 31. सही है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, पक्का? चलो बढ़िया, ठीक है। एक आखिरी सवाल कर देते हैं आज के दिन का, ठीक है, ताकि हमारे लिए कहानी इजी बन जाए। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 12 की पावर 300, क्या होगा? अब ये हो गया आपके लिए इजी कहानी। कैसे इजी हो गया देखते हैं, है ना। चलिए लॉग ले लेते हैं। log of 12 300 to the base 10 will be written as 300 into log of 12 to the base 10, which is nothing but 300 into log of 2 square into 3 to the base 10. So therefore this is 300 into 2 times log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10. सही है ना? चलो इसको अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 300 वैसा का वैसा आगे, ठीक है। वी नो log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। वी नो log 3 की वैल्यू क्या है विच इज 0.4771। एग्जाम में आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी, है ना, रट्टा नहीं मारोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट एनीवे दिस इज 300 इंटू दिस इज 0.6020 प्लस 0.4771। दिस बिकम्स 300 इंटू 197, ठीक है, 0.1970 1 पॉइंट ऐसा। सही है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट। अब अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, 3 9 27, 2 3 7 21, 21 plus 2 is 23, है ना। सो दिस इज 23, 323। सो दिस इज, है ना, 3 मल्टीप्लाई किया तो 3.2373 into 100. So this becomes 323.73। आपका कैरेक्टरिस्टिक है 323, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 324 प्लस 1 कर देना है, एंड दैट्स व्हाट द आंसर वुड बी। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। कंफर्टेबल है सबको? पक्का? चलो बढ़िया, मस्त चीज सीखी हमने। लॉग की पूरी कहानी इस मॉड्यूल के अंदर हमने खत्म करी। टोटल 3 सेशंस हमने करे आपके साथ लॉग के लिए। इन तीन को अच्छे से करिएगा। हमारी प्रो टैलेंट की चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कोर्स protalentdigital.com पे जाकर ये पूरा का पूरा कोर्स आप ले सकते हैं, जिसके अंदर हमने ये तगड़ी तरीके से मैथ के कॉन्सेप्ट आपके लिए अच्छे से बना के रखे हैं। प्लीज इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ ग्रेट डे।